Hello students, this is our 11th chapter, that is enhancement of food production. In the previous part of our video, we have studied about steps of hybridization. There were total 5 steps and that answer is very important. In this part of the video, we will study about Indian hybrid crops. What are the Indian hybrid crops and how they are grown and in what basis they were used and utilized? We will study about everything which is grown in India, that is Indian hybrid crops. First is wheat and rice. In 1960s, wheat and rice production increased tremendously. Norman E. Borlaug developed semi-dwarf varieties of wheat. Solanica and Kalyan Sona are two of the hybrid wheat varieties grown in India. Semi-dwarf rice variety were taken from IR8, that is International Rice Research Institute, and Daejeon native one from Taiwan, and then it is introduced in India. Jaya, Padma and Ratna are the better yielding semi-dwarf rice variety that were developed later. So कौन सी varieties है? Solanica and Kalyan Sona. ये दो varieties है which is grown in India. ये hybrid varieties है. Semi-dwarf rice variety were taken from IR8. What is IR8? It can be asked in MCQs also. IR8 is International Rice Research Institute. And second is Taikon native one, that is from Taiwan. And then it is introduced in India. वैसे ही ये वीट की वैरायटीज़ है. राइस की बात करेंगे तो जया, पद्मा एंड रत्ना आर द बेटर यील्डिंग सेमी डॉर्फ राइस वैरायटीज़ that were developed later. Second is sugar cane. Sugar cane मतलब गन्ना जो हम लोग नॉर्मली खाए हैं. Saccharum barberi is the native of North India and S. officinarum belong to South India. दो टाइप्स है शुगर केन के, एक है नॉर्थ इंडिया का, एक है साउथ इंडिया का. तो जो एस ऑफिसिनारम है, इसके जो स्टेम्प है वो बहुत ही थिकर स्टेम्प है एंड इट हैज़ हाई शुगर कंटेंट, बट इट डज़ नॉट ग्रो वेल इन नॉर्थ इंडिया. क्योंकि वो साउथ इंडिया का है तो वो नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं होता. दिस टू वैराइटीज़ वेर क्रॉस्ड टू गेट द डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ ऑफ बोथ. इस दो वैरायटी को क्रॉस किए, नॉर्थ इंडिया की वैरायटी को और साउथ इंडिया की वैरायटी को क्रॉस किए फॉर हाई शुगर कंटेंट, थिकर स्टेम्प एंड द एबिलिटी टू ग्रो इन नॉर्थ इंडिया. ये तीन चीज़ के लिए इस वैरायटी को क्रॉस किए. देन द एबिलिटी, तब क्या हो गया, CO419, 421, 453 are high yielding and having high sugar content, and then they are developed in India at Coimbatore, that is Tamil Nadu. तो किस किस वैरायटी को क्रॉस किए? एक नॉर्थ इंडिया की सैक्चारम बारबेरी एंड साउथ इंडिया की एस ऑफिसिनारम को, इन दोनों को क्रॉस किए फॉर व्हाट? फॉर हाई शुगर कंटेंट, थिकर स्टेम एंड द एबिलिटी टू ग्रो इन नॉर्थ इंडिया. इसलिए इन दोनों वैरायटीज़ को क्रॉस किए एंड टुडे दे आर डेवलप्ड इन इंडिया एट कोयम्बतूर इन तमिलनाडु. क्लियर? थर्ड है हमारा मिलेट्स. हाइब्रिड मेज, गंगा 3, ज्वार एंड बाजरा हैव बीन डेवलप्ड इन इंडिया. ये सारी चीज़ें इंडिया में डेवलप होती है
These varieties are high yielding and resistant to water stress. कौन कौन से मिलेट्स हैं हमारे इंडिया में? मेज़ है, ज्वार है, बाजरा है, ये सारी चीज़ें डेवलप होती है इंडिया में. एंड दिस वैराइटीज़ आर हाई यील्डिंग एंड दे आर रेजिस्टेंस टू वाटर स्ट्रेस. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट इज प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस. सम ऑफ द डिजीज कॉज्ड इन प्लांट्स आर, ये जो नीचे चार्ट है ये है पैथोजन और प्लांट डिजीज़ का. ओके तो फंगाई के वजह से क्या होता है? ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, लेट ब्लीट ऑफ पोटैटो. बैक्टीरिया की वजह से होगा ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स. वायरसेस की वजह से टबैको मोज़ाइक वायरस. So these are some disease which are caused in plants. The basic objectives of breeding for disease resistance is to develop inherent quality in the plant to prevent the pathogen for causing the disease. तो कोई ऐसे प्लांट बनाएं जो कि ये सारी डिजीज़ से रेजिस्टेंट रहे. एंड द मेन ऑब्जेक्टिव was to develop inherent quality in the plant to prevent the pathogen. इस पैथोजन को प्रिवेंट कर सके from causing the disease. Such variety of plants are called disease resistance plant. ऐसी variety of plant को बोलते हैं disease resistant plant. The basic technique used is the same as for normal hybridization process. यहाँ पे क्या होता है? बेसिक टेक्निक क्या है? जैसी नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस की टेक्निक है वैसी सेम टू सेम टेक्निक यहाँ पे भी यूज़ होती है. बट द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर यर इज़ टू प्रोड्यूस अ प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंस प्लांट. सेकेंड है, इस चार्ट में क्या दिया है? सम डिजीज़ वैरायटी प्लांट्स डेवलप्ड आर. पहला है क्रॉप है वीट, इसकी वैरायटी है हिमगिरी. रेजिस्टेंस टू डिजीज़ जैसे कि लीव एंड स्ट्रिप रस्ट, हिलबर्ट. सेकेंड है ब्रोसिका, इसकी वैरायटी है पूसा स्वार्नी. ये हुआ है वाइट रस्ट से रेजिस्टेंट हुआ है. फिर कॉलीफ्लावर, इसकी वैरायटी है पूसा शुभ्रा एंड इट इज़ रेजिस्टेंस टू ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट. फोर्थ क्रॉप है हमारा चिली, इसकी वैरायटी है पूजा सदाबहार. इट इज़ रेजिस्टेंस टू डिजीज़ जैसे चिली मोज़ाइक वायरस, टबैको मोज़ाइक वायरस एंड लीफ कर्व. तो दिस आर सम disease to resistance to disease and the name of the crops. Moving to the next slide है हमारा म्यूटेशन ब्रीडिंग. म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या है? म्यूटेशन का डेफिनेशन हम लोग प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़े हैं. म्यूटेशन इज सडन हेरिटेबल चेंज इन द जीनोटाइप. म्यूटेशन क्या है? इट इज़ अ सडन हेरिटेबल चेंज इन द जीनोटाइप and it is caused naturally. नेचुरली चेंजेस होते हैं, हम लोग मैनुअली जाके नहीं कर सकते. इट कैन ऑल्सो बी इंड्यूस्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ केमिकल म्यूटेजेंस. पहला है, ये म्यूटेशन को हम लोग केमिकल म्यूटेजन से इंड्यूस कर सकते. इंड्यूस मतलब बढ़ा सकते हैं. तो फर्स्ट है उसमें नेचुरल या फिर फिज़िकल म्यूटेजेंस आर हाई टेम्परेचर, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, एक्स रेज एंड UV रेज. सेकेंड है केमिकल म्यूटेजेंस आर नाइट्रस एसिड, EMS. EMS क्या है? इथाइल मिथाइल सल्फोनेट, मस्टर्ड गैस, colchicine, etc. Seedlings or seeds are irradiated by CO60.
then it is exposed to UV bulbs, X-ray machine, etc. Mutagen cause gene mutations and chromosomal aberration. The treated seedlings are then screened for resistance to disease या फिर pest, high yield etc. For Jagannath variety of rice, NP 836 variety of wheat जो कि rust resistance है, Indore 2 variety of cotton, it is resistance to bollworms. Second है Regina 2 variety of cabbage, resistance to bacterial rot एक्सेट्रा. तो ये सारी जो सीडलिंग्स है ये सारी केमिकल म्यूटेशंस के वजह से हुई है. देन प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग अ रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट. अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि प्लांट ब्रीडिंग से पेस्ट को कैसे रेजिस्ट किया जाता है. ओके तो insect being herbivory incur heavy loss in the quantity and quality of crops. इंसेक्ट क्या होती है? हार्बोवॉइड्स होती है. हार्बोवॉइड्स क्या करते हैं? हार्बोवॉइड्स ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं. तो इंसेक्ट बीइंग हार्बोवॉइड्स ये लोग क्या करते हैं? हैवी लॉस करते हैं इन द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं? उस क्रॉप्स को खा लेते हैं. Resistance in crop can be developed by following ways. पहला है development of morphological characters like hairy leaves in cotton and wheat develop vector resistance from jacid and cereal leaf beetle etc. क्या कर सकते हैं हम लोग? hairy लीव्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हेयर्स का ग्रोथ कर सकते हैं, जैसे कि कॉटन और वीट में के प्लांट्स में हुआ है. तो इससे बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ इंसेक्ट प्रिवेंट हो सकते हैं. सेकंड है सॉलिड स्टेम इन वीट लीड टू रेजिस्टेंस टू स्टेम बोरर्स. वीट का जो स्टेम होता है उसे हम लोग सॉलिड कर सकते हैं ताकि उससे स्टेम बोरर्स जो है, इट इज़ अ टाइप ऑफ इंसेक्ट, वो ना आए. थर्ड वी कैन डू इज बायोकेमिकल कैरेक्टर्स प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट एंड पेस्ट. फॉर एग्जांपल द हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट इन मेज लीड टू रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्टेम बोरर. बायोकेमिकल कैरेक्टर्स प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट एंड पेस्ट. इसके एग्जाम्पल है हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट इन मेज एंड दिस लीड टू रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्टेम बोरर. फोर्थ है नेक्टरलेस कॉटन, ऐसा कॉटन जिसमें नेक्टर ना हो. बिकॉज ऑफ दिस हैविंग स्मूथ लीव्स डेवलप रेजिस्टेंस अगेन बॉलवॉर्म्स. तो हम लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं जिससे प्लांट ब्रीडिंग से रेजिस्टेंस प्लांट जो है वो रेजिस्ट कर सके इंसेक्ट पेस्ट को. वी कैन यूज़ दिस स्टेप्स. फिर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर में क्या होता है? इट इज़ एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स. एक ऐसा कलेक्शन है ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स. इट इज़ इन फैक्ट emerged as a technique of plant biotechnology. प्लांट की जो बायोटेक्नोलॉजी होती है उसके साथ ये emerge करता है ये टेक्निक. Here isolated cell tissues, organs are grown in vitro on a solid liquid nutrient medium under aseptic and controlled condition of light, humidity and temperature for achieving different objectives
द पार्ट ऑफ प्लांट यूज्ड इन टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड एक्सप्लांट। क्या हो रहा है यहाँ पे? टिश्यू कल्चर पहले क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टेक्निक। It is in fact emerged as a technique of plant biotechnology। यहाँ पे जो आइसोलेटेड सेल होते हैं, आइसोलेटेड मतलब कोई चीज़ जो अलग हो, तो आइसोलेटेड सेल क्या होगा? एक अलग से एक सेल है, टिश्यू ले लिए, या तो आइसोलेटेड सेल ले लो, या तो आइसोलेटेड टिश्यू ले लो, या तो आइसोलेटेड ऑर्गन ले लो। फिर उसे इन विट्रो तरीके से कोई सॉलिड या लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम पर ग्रो करना है। जैसे ये टेस्ट ट्यूब दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे ग्रो करना है, इसे बोलते हैं इन विट्रो टेक्निक, जहाँ कोई भी सॉलिड पे या फिर लिक्विड पे उस आइसोलेटेड सेल, टिश्यू या ऑर्गन को हमने ग्रो करना है अंडर अ कंडीशन जहाँ पे तुम लाइट को, ह्यूमिडिटी को, टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके। द पार्ट ऑफ द प्लांट यूज्ड इन टिश्यू कल्चर, वो पार्ट प्लांट का जो टिश्यू कल्चर में यूज़ हुआ है उसे बोलते हैं एक्सप्लांट। क्लियर? प्लांट टिश्यू कल्चर इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी क्या है? Which is an inherent ability of living plant cell to grow, to divide, redivide, and then give rise to a whole plant. This is totipotency. Plant tissue culture is based on this principle of totipotency. Totipotency is an inherent ability of living plant cell, जिसमें प्लांट सेल जो है वो अपने आप ग्रो करता है, फिर डिवाइड करेगा, फिर रीडिवाइड करेगा, एंड देन इट गिव राइज टू अ होल प्लांट। क्लियर विद दिस? देन हर्बर लैंड इन 1902 for the first time convinced this idea and developed the concept of in vitro cell culture, that is plant morphogenesis. This is very important for NEET point of view. The name of this man, Herbert Land, is very important. Herbert was the first time उसने convince किया था इस idea पे, and he developed the concept of in vitro cell culture. The plant tissue culture medium contains all essential minerals. उस मीडियम में वो या तो सॉलिड होता है या तो लिक्विड होता है वो मीडियम में हर टाइप का मिनरल्स, सोर्सेज फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, वाटर, ग्रोथ हार्मोन, विटामिन एंड अगर, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। The plant tissue culture medium contains all essential minerals, sources for carbohydrates, protein, fats, water, growth hormone. Growth hormone नहीं होगा तो grow नहीं करेगा. Growth hormone is essential. Vitamin and agar. Agar for what? For callus culture. The most commonly preferred medium for tissue culture is MS, Morashing and Skoog medium. What is Morashing and Skoog medium? हम लोग ने previous chapters में पढ़े हैं इसके बारे में. And then coming to the next slide, based on the nature of explant, there are 3 types. Wise cell culture, organ culture and embryo culture. Explant क्या है? हम लोग ने अभी पीछे पढ़ा था. Explant is the part of the plant used in tissue culture is called explant. Clear? तो based on the nature of explant का nature कैसा है उस पे based इसको 3 types में divide किया गया.
फर्स्ट इज सेल कल्चर, देन ऑर्गन कल्चर, थर्ड इज एम्ब्रियो कल्चर। सेकेंड पॉइंट में लेते हैं, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इन विट्रो ग्रोथ देर आर टू टाइप्स वाइज। फर्स्ट इज कैलस कल्चर। कैलस कल्चर क्या है, सॉलिड मीडियम में। एंड सेकेंड है सस्पेंशन कल्चर। सस्पेंशन कल्चर इज इन लिक्विड मीडियम। इन विट्रो ग्रोथ पे दो टाइप में डिवाइड हुआ है, या तो सॉलिड में ग्रो होता है या तो लिक्विड में ग्रो होता है। तो अगर सॉलिड में ग्रो हो रहा है तो ऐसे टाइप के कल्चर को बोलते हैं कैलस कल्चर, और अगर लिक्विड में ग्रो हो रहा है देन इट इज़ कॉल्ड एज सस्पेंशन कल्चर। फिर नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ aseptic condition. Aseptic condition is essential so as to avoid contamination by other harmful microorganism. असेप्टिक कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा असेंशियल है। असेंशियल क्यों है, इम्पॉर्टेंट है। सो एज टू अवॉइड कंटामिनेशन बाय अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दूसरे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कंटामिनेशन अवॉइड करने के लिए aseptic condition is very essential. It is accomplished by sterilization, पूरी तरीके से स्टरलाइजेशन किया जाता है ऑफ ग्लासवेयर। ग्लासवेयर को किससे स्टरलाइजेशन कर रहे हैं, यूज़ ऑफ डिटर्जेंट, हॉट एयर, ओवन, ये सारी चीज़ें से ग्लासवेयर को स्टरलाइज कर रहे हैं। सेकेंड है न्यूट्रिएंट मीडियम। न्यूट्रिएंट मीडियम को करते हैं बाय ऑटोक्लेव अंडर कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 15 LB पर स्क्वायर इंच फॉर कंटिन्यूस 20 मिनट्स। थर्ड है एक्सप्लांट। एक्सप्लांट का क्या करते हैं, बाय ट्रीटमेंट ऑफ 20% इथाइल अल्कोहल एंड 0.1% HgCl2. Explant is treated by ethyl alcohol and 0.1% of HgCl2. फोर्थ है इनोक्यूलेशन चेम्बर। इनोक्यूलेशन चेम्बर में क्या होता है, लेमिनार एयर फ्लो। इनोक्यूलेशन चेम्बर इज done by laminar air flow by using UV ray tube for 1 hour before performing actual inoculation of explant on the sterilized nutrient medium. This is very important. ये पूरा पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, थियोरी है पूरा, यू हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग। पहले ग्लासवेयर को, फिर न्यूट्रिएंट मीडियम, देन एक्सप्लांट, फिर इनिकुलेशन चेम्बर। ये इनिकुलेशन चेम्बर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो क्वेश्चन आता है व्हाट आर द मेंटेनेंस ऑफ असेप्टिक कंडीशन, या फिर राइट द मेंटेनेंस ऑफ असेप्टिक कंडीशन। सो ये लिखना है। अदर कंडीशन मेंटेन्ड आर, पहला और कौन सी कंडीशन मेंटेन्ड होती है, टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस, pH ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम 5 to 5.8 एंड एरिएशन ऑफ पर्टिकुलर फॉर सस्पेंशन कल्चर। ये सारी चीज़ें हो गई। फिर इन कैलस कल्चर, कैलस कल्चर क्या है, सॉलिड मीडियम। कैलस कल्चर में सॉलिड मीडियम इज़ यूज्ड, वी ऑल नो दिस। द डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू इज लॉस्ट, hence the cells of explant divide and redivide to form a mass of undifferentiated cell called callus. क्योंकि वो सेल है तो उसका ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपमेंट टिश्यू का वो तो पूरी तरीके से लॉस्ट हो गया, क्योंकि हमने उसको एक दूसरे प्लांट से निकाला है। तो अब वो कैसे ऑर्गेनाइज करेगा या कैसे डेवलप करेगा, तो इसीलिए जो सेल है, एक्सप्लांट का जो सेल होता है
वो अपने आप को डिवाइड करता है, फिर रीडिवाइड करता है, फिर वापस डिवाइड करेगा, फिर रीडिवाइड करेगा। ऐसे करते करते it form a mass of undifferentiated cell and that is called callus. Clear? It is maintained on solid medium. Callus can be induced to form organs like roots. Roots का formation को क्या बोलते हैं? Rhizogenesis. Rhizo means roots, genesis means formation. Rhizogenesis. रूट्स के फॉर्मेशन को बोलते हैं रीजोजेनेसिस, शूट को बोलते हैं कैलोजेनेसिस एंड दस द प्लांटलेट नॉट शेकर एजिटर इज नीडेड। नो शेकर या एजिटर नीडेड है क्योंकि वो सेल जो है वो कैलस है, वो सिर्फ डिवाइड और रीडिवाइड करेगा अपने आप को, तो एजिटर की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया कैलस कल्चर के बारे में। क्लियर? फिर सस्पेंशन कल्चर में क्या होता है? स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल और सिंगल सेल आर यूज्ड एज एक्सप्लांट इन द लिक्विड मीडियम। एक स्मॉल सेल, ग्रुप ऑफ सेल या फिर सिंगल सेल, ग्रुप ऑफ सेल और सिंगल सेल are used as explant in the liquid medium. The liquid medium is constantly agitated by using shakers so that there is constant mixing of medium and the explant. Clear? Liquid medium को constantly agitated किया जाता है by using shaker, जिसे agitated बोलते हैं। इससे क्या होता है? कांस्टेंट मिक्सिंग करना पड़ता है मीडियम का और एक्सप्लांट का। बट द कैलस एंड सस्पेंशन कल्चर डाई इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। देयरफॉर सब कल्चरिंग इज नेसेसरी फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ द टेक्निक। ये हो गया हमारा यहाँ पे टिश्यू कल्चर कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो प्रोपोगेशन का, या इसे क्लोनल प्रोपोगेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है? जेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स वाया शूट्स इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड commercial method of regeneration of plants. Organogenesis via shoot is considered as one of the most widely used commercial method of regeneration of plant. Micropropagation is also known as clonal propagation. Remember students, माइक्रो प्रोपोगेशन को क्लोनल प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। इट इज़ ओनली प्रोसेस अडॉप्टेड बाय इंडियन प्लांट बायोटेक्नोलॉजिस्ट इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, मेनली फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स जैसे ऑर्चिड्स, यूकेलिप्टस एक्सेट्रा, and fruits like banana, grapes, citrus, etc. It is the only process जो हमारे इंडियन बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज़ करे हैं, अडॉप्ट किए हैं मेनली फॉर कमर्शियल पर्पस ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स जैसे ऑर्चिड्स हो गया, क्राइजेंथेमम हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, और फ्रूट्स जैसे बनाना, ग्रेप, सिट्रस, ये सारी चीज़ों के लिए माइक्रो प्रोपोगेशन करते हैं, जिसे क्लोनल प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। फिर व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन? तो फर्स्ट एडवांटेज है इट हेल्प्स इन रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट। सेकेंड है a large number of plantae are obtained within a short period and from a small space. रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और शॉर्ट पीरियड में
ज़्यादा प्लांटलेट्स ग्रो हो रहे हैं, वो भी स्मॉल स्पेस में। थर्ड है प्लांट्स आर obtained throughout the year under controlled condition independent of seasons। फोर्थ है genetically similar plants जैसे clones are produced, they formed by this method। Therefore desirable characters जैसे genotype and desired sex of superior varieties are kept constant for many generations। फिफ्थ है the rare plant and endangered species are multiplied by this method। रेयर प्लांट और एंडेंजर्ड स्पीशीज़, जो कि प्लांट बहुत ज़्यादा रेयर है या फिर ऐसा स्पीशीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरे में है कि वो आगे जाके गायब हो जाएगा वो स्पीशीज़, जैसे डायनासोर है। तो ऐसे प्लांट को हम लोग फटाफट मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय दिस मेथड, एंड दैट टाइप ऑफ प्लांट आर सेफ। हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, हाइब्रिड वैरायटी, एक न्यू वैरायटी हम लोग फॉर्म करते हैं। टिश्यू कल्चर में हम लोग उस प्लांट को ग्रो करना सीखते हैं, ओके, फॉर अ गुड यील्ड या फिर गुड क्वांटिटी क्वालिटी। पर माइक्रो प्रोपोगेशन में हम लोग सेम प्लांट का क्लोन बनाते, क्लोन मतलब सेम टू सेम, जैसा पहले था वो प्लांट वैसे ही उसका बाद में उसका सेम टू सेम कॉपी ऑफ द प्लांट बनाते। ये हो गया हमारा माइक्रो प्रोपोगेशन। So students, we will end this video here. In the next video we will start with the next topic. So thank you.